آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ملک بھر میں منایا گیا یوم آزادی کا جشن، نریندر مودی نے لال قلعے پر لہرایا ترنگا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں گولکنڈہ قلعے میں پرچم کشائی، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے پرانے شہر میں لہرایا ترنگا۔ کانگو اور افریقہ کے دیگر حصوں میں منکی پاکس، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیلتھ ایمرجنسی کا کیا اعلان۔ اور حیدرآباد کے مضافات میں خوفناک سڑک حادثہ، شیرخوار سمیت 3 ہلاک۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کانگو اور افریقہ کے دیگر حصوں میں منکی پاکس کے پھیلنے کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ بدھ کو منکی پاکس سے متعلق ہنگامی کمیٹی نے میٹنگ کی اور مجھے مشورہ دیا کہ ان کی نظر میں صورتحال بین الاقوامی سطح پر باعث تشویش اور صحت عامہ کی ایمرجنسی ہے۔ میں نے وہ مشورہ قبول کر لیا ہے۔ WHO نے یہ اعلان اس لیے کیا ہے کیونکہ 12 سے زائد ممالک میں بچوں اور بڑوں میں منکی پاکس کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے اور وائرس کی ایک نئی شکل پھیل رہی ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDS نے اعلان کیا تھا کہ منکی پاکس کا پھیلنا ایک صحت عامہ کی ایمرجنسی ہے جس میں 500 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اس نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی تھی۔ Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یہ اطلاع روسی صدر کے دفتر اکرمکن نے جمعرات کو دی ہے۔ روسی صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ محترم صدر، پیارے وزیر اعظم، ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پر میری جانب سے دلی مبارکباد قبول کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے بھی ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر ہندوستانی شہریوں اور حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ وزارت خارجہ نے جمعرات کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، ایران دوست ملک اور حکومت ہند کو ان کے یوم آزادی پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ہمہ جہت تعلقات کو مضبوط بنانا دونوں ممالک کے باہمی ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ہندوستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر دہلی کے لال قلعے پر قومی پرچم لہرایا اور مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ملک میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے جرائم کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جو بھی خواتین کے ساتھ گھناؤنا سلوک کریں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ نریندر مودی نے اشاروں میں کولکتہ میں پیش آئے خاتون ڈاکٹر کی عصمت ریزی اور قتل واقعے پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے خلاف بربریت کرنے والوں کو جلد از جلد سزا دی جانی چاہیے۔ تاہم انہوں نے اپنے خطاب میں کولکتہ کے واقعے کا براہ راست ذکر نہیں کیا۔ مودی نے اپنی تقریر میں کہا کہ وکست بھارت 2047 محض الفاظ نہیں ہیں، یہ 140 کروڑ لوگوں کے عزم اور خوابوں کی عکاس ہیں۔ مودی نے ہر گھر ترنگا مہم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ستائش کی اور لوگوں سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لہرایا اور کہا، ترنگا ہماری خود اعتمادی اور وقار ہے اور سچائی، عدم تشدد اور بھائی چارے کی روایت کی علامت ہے۔ اس موقع پر کھڑگے نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا،
हम अपने लाखों अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हैं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जमहूरियत और आइन हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा कवच है। आखिरी दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे। उन्होंने जमहूरियत में अपोजिशन के रूल को अहम करार देते हुए कहा कि अपोजिशन जमहूरियत की ऑक्सीजन की मानिंद है। हुकूमत के गैर आइनी रवैये को रोकने के साथ साथ वो आवाम की आवाज़ भी बुलंद करती है। उन्होंने कहा कि ये तशवीश की बात है कि आइनी और खुद मुख्तार इदारों को हुकूमत ने कठपुतलियों में तब्दील कर दिया है। आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को एक तरक्की याफ्ता और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की तामीर की हुकूमत के अज़्म का अक्कास करार दिया। अपने पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, मोदी जी का खिताब काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए खुद मुक्तफ़ी एक मुल्क एक इंतखाब UCC तिब्बी तालीम की तोसी सनती मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इन इंडिया और SHG के ज़रिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डालता है जो कि उनकी कामयाबियों से मुतासिर है। पिछले 10 साल में मुल्क को आगे ले जाने का अज़्म ज़ाहिर कर रहे हैं। मैं तमाम हमवतनों से गुजारिश करता हूं कि इस किताब को सुनें और एक मजबूत हिंदुस्तान की तामीर का अहद करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सिविल कोड को फ़िरक़ावारियत और इम्तियाजी सलूक पर मुबनी करार देते हुए जुमेरात को कहा कि अब वक्त की ज़रूरत है कि पूरे मुल्क में सेकुलर सिविल कोड नाफिज हो। मोदी ने 78वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला की फसील से हमवतनों से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि सिविल कोड इम्तियाजी और फ़िरक़ा वाराना है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बार बार बहस की है और अहकामात दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यकसा सिविल कोड के बारे में बार बार बहस की और हुक्म दिया है कि मुल्क के एक बड़े तबके का मानना है कि सिविल कोड एक तरह से फ़िरक़ा वाराना सिविल कोड है, इम्तियाजी सलूक करने वाला है और इसमें सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि आइन को 75 साल मुकम्मल होने को हैं और सुप्रीम कोर्ट और आइन की भी यही रूह है, इसलिए आइन बनाने वालों के ख्वाबों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिल्ली के लाल किले के फसील से यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान अपने खिताब में ख़वातीन की हिफाजत पर किए गए तस्करे पर ताज्जुब का इजहार किया।
सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजीर आजम को तनकीद का निशाना बनाया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि आज की तकरीर में वजीर आजम मोदी ने खवातीन की हिफाजत पर तशवीश का इजहार किया है। इनकी अपनी हुकूमत ने बिलखिजमानों की इज्तिमाई इस्मत रेजी करने वालों और उनके खानदान के कातिलों की रिहाई की मंजूरी दी थी, जिसने 15 साल इंसाफ के लड़ते हुए गुजारे। मोदी इस वक्त ज्यादा अरसे तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। मोदी ने कर्नाटक में एक ऐसे उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई जिस पर हजारों खवातीन के खिलाफ सबसे घिनौने जराइम का इल्जाम है। सदर मजलिस ने कहा कि अगर वजीर आजम खुद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को संजीदगी से नहीं लेते तो फिर हम समाजी तब्दीली की तवक्को कैसे कर सकते हैं। जब हुक्मरान जमात इस्मत रेजी के मुजरिमों को रिहा करती है और इनकी रिहाई पर हार पहनाए जाते हैं तो मुजरिमों को क्या पैगाम जाता है। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कैंपस में मुश्तइल अफराद ने तोड़फोड़ की और तबाही मचाई। इस मौके पर हॉस्पिटल की इमलाक को तबाह कर दिया गया। एहतजाजियों ने वहां नजर आने वाली गाड़ियों को भी निशाना बनाया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मुश्तइल हुजूम ने उन पर भी पथराव किया। बाद अज़ां पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हुजूम को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ पुलिस ओहदेदारों के जख्मी होने की इतला है। वाक़े के बाद कॉलेज कैंपस में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। वाज़ेह है कि 9 अगस्त को आरजीए कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से खवातीन ट्रेनी डॉक्टर की नाश मिली थी, जिसका इस्मत रेजी के बाद कत्ल कर दिया गया था। करीमनगर जिले में कुत्तों के हमले का एक और वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक घर के बाहर खेल में मसरूफ 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला करते हुए उनको जख्मी कर दिया। ये वाकया जिले करीमनगर के गन्नूकुल्ला गांव में पेश आया। इस वाक़े में जख्मी होने वाले तीनों बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए शिकायत की कि हालिया दिनों के दौरान कुत्तों के हमलों के वाक़यात में इजाफा हो रहा है और हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते भी ज़िले के एक मुकाम पर कुत्ते ने एक छोटे बच्चे पर बुरी तरह हमला किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम आज़ादी के मौके पर शहर हैदराबाद के तारीखी गोलकोंडा किले पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमारी आज़ादी की जद्दोजहद दुनिया की तारीख में वाहिद अजीम जद्दोजहद है जो अदम तशद्दुद के हथियार के साथ लड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू की दूरअंदेशी की बदौलत मुल्क आज इस मुकाम पर पहुंचा है। उनके शुरू करदा मंसूबों की वजह से मुल्क सरसब्ज़ व शादाब है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने ज़राअत में इनक़िलाब बर्पा किया। उन्होंने कहा कि BHEL और दीगर अवामी शोबे के इदारों के क़याम से लाखों अफराद के लिए रोज़गार को यकीनी बनाया गया। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उन्हें कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने अपने हालिया दौरे अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि उनके दौरे अमेरिका के मौके पर वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई। वर्ल्ड बैंक ने कम सूद पर कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम पिछली हुकूमत की तरह ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज लेकर आवाम पर बोझ नहीं डालेंगे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। PCC के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ करने का वादा पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि आवाम से किया गया हर वादा पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह कांग्रेस लीडर निरंजन की जानिब से तारीखी चारमीनार के दामन में भी परचम कुशाई अमल में लाई गई। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने यौम आज़ादी के मौके पर हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह सदर मजलिस ने तारीखी चारमीनार के करीब मदीना सर्किल पर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरगट्टी डिवीज़न के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मोहम्मद कैप मार्ट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी के अलावा दूसरे शामिल हैं। BRS पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में 78वीं यौम आज़ादी की तकरीब मनाई गई। पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने कौमी परचम लहराया।
साबिक वज़रा, अरकान असम्बली, कानून साज कौंसिल के अरकान के अलावा अवामी नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट में यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अगस्त 2023 से जारी जुलाई तक मुनक़िद होने वाली 4 लोक अदालतों में अब तक 73,786 मुक़दमात का तस्फ़िया किया गया। उन्होंने बताया कि मुतासिरीन को मुआवजे के तौर पर 4.94 करोड़ रुपए अदा किए गए। 1 जुलाई से मुतारुफ करवाए गए 3 फौजदारी क़वानीन नाफिज हुए। उन्होंने कहा कि 1950 में इख्तियार किया गया आइन न सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि हमारी जमहूरियत की बुनियाद भी है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। यह हादसा रंगारेड्डी जिले के पिद्दा गोलकुंडा में आउटर रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार कार और तूफान गाड़ी से तसादुम के नतीजे में पेश आया। इस हादसे में 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। महलूकीन में शेरकार बच्चा भी शामिल है। जख्मियों का ताल्लुक एक ही खानदान से बताया जाता है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन का ताल्लुक महबूबनगर जिले के आत्माकुर के एक ही खानदान से बताया गया है जो 2 कारों में यादगिरी गुट्टा से वापस आ रहे थे। हाइड्रा की तश्कील हुकूमत ने सरकारी इमलाक, तालाबों, पार्क एरियाज और बफर जोन की हिफाजत के मकसद से दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इसके चेयरमैन हैं। हुकूमत ने सीनियर IPS ओहदेदार रंगनाथ को इस इदारे का कमिश्नर मुकर्रर किया है। हाइड्रा की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। ताज़ा तौर पर जुमेरात को ज़िले मेडचल के बाचूपल्ली एर्राकुंटा इलाके में ज़ेर तामीर हमा मंजिला इमारत को मुनहदम कर दिया गया। हुक्काम ने बताया कि इन्होंने हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ के हुक्म पर ये कार्रवाई की है। हैदराबाद में जुमेरात की शाम ज़बरदस्त बारिश हुई जिसकी वजह से सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया था। गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यौम आज़ादी की तातील की वजह से अरकान ख़ानदान के साथ बाहर निकलने वाले अफराद को बहुत मुश्किलात दरपेश हुई। इसी दौरान ओहदेदारों ने हैदराबाद में मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर करते हुए आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। मुल्क भर में मनाया गया यौम आज़ादी का जश्न। नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर लहराया तिरंगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों गोलकुंडा किले में परचम कुशाई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में लहराया तिरंगा। कांगो और अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मंकी पॉक्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी का किया ऐलान। और हैदराबाद के मज़ाफ़ात में खौफनाक सड़क हादसा, शेरकार समेत 3 हलाक। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।